A contract of construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than the more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he delayed the work by 30 days? ओके, सो बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, वहां पे पेनल्टी लगती है डिले, इफ वर्क इज डिले। सो फर्स्ट डे लगती है पेनल्टी 200, फिर 50 रुपीज प्रीसीडिंग डे में इंक्रीज होते जाते हैं ऐसे, राइट। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे फॉर 30 डेज। ए कितना है 200, कॉमन डिफरेंस इज 50, एन इज कितने नंबर ऑफ डेज 30। सो हमें यहाँ पे फाइंड करना है एस एन। एस एन वी नीड टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। सो 200 प्लस 250 सेकंड डे का, थर्ड डे का इतना, फोर्थ डे का इतना। सो वी नीड टू फाइंड एस एन। सो द फॉर्मूला फॉर एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2, 2a plus n minus 1 into d. So you must remember this formula. Apply that formula, all the values are given. If you put the values and solve it, then you will get the answer. So how? N is given 30 by 2, A is given 200, 30 minus 1, 29, D is given 50, 400 plus, then it comes out to be is equal to 15 into 1850. Then the answer in this case is 17, it's become 27. So this is the final answer in this case. So I hope this question is clear to you. Let me check the answer. Sir, it is right. Okay. Nitya? Yes, sir. Okay. Look at this question on the screen. Read this question on the Yes, screen. sir. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes of students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास व्हाट इज द गिवन डाटा, हमारे पास 700 रुपीज है। तो सम एस एन इज वी हैव 700 एंड वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्राइस, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं स्टूडेंट्स को। कितने प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे? 7 प्राइज इज देयर, 7 प्राइज, टोटल 700 रुपीज है, 7 प्राइज देने हैं, हर एक प्राइस 20 रुपीज लेस है। सो हमें फाइंड करना है प्राइस की अमाउंट क्या होगी, राइट। सो एन इज इक्वल टू 7 इन दिस केस, एंड व्हाट इज डी इन दिस केस? कम हो जाता है, इफ इट इज कम हो जाता है तो दैट इज -20। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस केस। सो डी इज -20। सो जैसे कि पहला प्राइस अगर 160 रुपीज है तो नेक्स्ट प्राइस 20 रुपीज कम होगा तो 140 हो जाएगा, ठीक है। देन इट्स 120 हो जाएगा। तो डी कैसे करेंगे? 140 माइनस 160, लाइक दिस इट कम्स आउट टू बी -20। सो डी में मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं इस क्वेश्चन में, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एट दैट टाइम। नाउ we need to find, in this case find first term find करते हैं। let us apply this formula, 2a plus n minus 1 into d। so put all the values here in this formula, it's 700, sn is given 700,
n is given 7, a we do not know, n is given 7 minus 1 6 and d is minus 20. 7 cancel this 100 times, 2 goes on this side, 200, it's 2a minus 120. It's become 320 equal to 2a. So what is the value of a in this case is 160. So first price 160 rupees. If first price is 160 rupees, what is the amount of second price? 140. Yes, right. The first price is equal to 160 rupees, the first term. So second price is 140 and so on. Third, fourth, fifth, sixth and seventh term is according to this. It's price same. So 20 rupees कम होते जाएंगे, then it's 120, then it's 100, it's 80, it's 40. No, it's not 40. 120, 100, 80, then it's 60 and it's 40. तो जब आप इनका sum करेंगे, if you take the sum of all these, then it comes out to be, the sum of all these price comes out to be 700. Right? I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question 17 written on the screen. Shreya Chaudhary, could you please read this question? Yes, sir. In school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying exam. A section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 4. There are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? Okay. स्टूडेंट्स ट्री प्लांट कर रहे हैं, तो टोटल कितने ट्री उन्होंने प्लांट किए हैं ये हमें पता करना है. कितनी क्लासेस हैं स्कूल में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11 and 12. और हर एक क्लास एक ट्री प्लांट करती है. जैसे फर्स्ट नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करती है? एक ट्री प्लांट करती है एक क्लास. और कितने सेक्शन है? हर एक क्लास के 3 सेक्शन है. तो एक सेक्शन एक ट्री प्लांट करेगा, तो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, तो 3 into 1. तो कितने ट्री प्लांट करेगी फर्स्ट क्लास? 3 ट्री. सेकंड क्लास 2 ट्री प्लांट करती है, 3 सेक्शन है, तो कितने ट्री प्लांट करेगी? 2 सेक्शन ए, 2 सेक्शन बी और 2 सेक्शन सी. तो कितने ट्री हो गए? 6. तो 3 सेक्शन, नंबर ऑफ सेक्शन, एक सेक्शन कितने ट्री लगाता है? 2 ट्रीज लगाता है. तो ट्रीज जो लगाते हैं सेक्शंस अपने क्लास के अकॉर्डिंग लगाते हैं. जैसे थर्ड क्लास है तो 3 ट्री लगाएगी, 10th क्लास है तो 10 ट्री लगाएगी. राइट? तो फर्स्ट सेकंड क्लास में कितने ट्री प्लांट करेगी? सेकंड क्लास 6 ट्रीज प्लांट करेगी. ठीक इसी तरह से थर्ड क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी? 3 into 3 9. फोर्थ क्लास कितने ट्री प्लांट करेगी? 4. एक सेक्शन 4 ट्री प्लांट करेगा, तो 3 सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेगा? 12 एंड सो ऑन. अगर आप 12th क्लास पे आ जाते हैं डायरेक्ट, तो एक सेक्शन 12 ट्री प्लांट करेगा, तो 3 सेक्शन कितने ट्री प्लांट करेंगे? 3 into 12, 12 3 जा 36. और ऐसे चलता जाएगा लाइक दिस. अब हमें फाइंड करने कितने ट्रीज लगे हैं, तो इन ट्रीज को सम कर दें अगर यहां से, तो ये नंबर ऑफ ट्रीज आ जाएंगे. So if you look at this, in this case, what is the value of A? A is 3. D कितना आ रहा है? अगर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, 6 minus 3 3, 9 minus 6 3, 12 minus 9 3, तो 3 का डिफरेंस आ रहा है. और AN कितना है? लास्ट टर्म है 36. और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें? देखो कितनी क्लासेस हैं? 12 क्लासेस हैं, तो N is 12 in this case, right? So now find the sum, so then you will get the answer. The sum is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, but I am going to apply this formula, this one, n by 2 a plus an in modified form.
तो ये मेरे पास an है, तो इसको डायरेक्टली मैं यूज कर लूंगा. सो इफ यू अप्लाई दिस देन कैलकुलेशंस थोड़ी शॉर्टर हो जाएंगी. n is 12/6. व्हाट इज a is given 3, a की जगह पे 3 रख रहा हूं. What is an? An is given 36. So it's 6 into 36 plus 3, 39. So the value of Sn is 234. So how many trees they plant? They plant 234 trees, right? I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 18 written on the screen. A spiral is made up of successive semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radius 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, as shown in figure 5.4. What is the total length of such spiral made up of 13 consecutive semicircles? ओके, सो यहाँ पे जो स्पाइरल होती है, नोटबुक पे स्पाइरल आपने देखा होगा, उस स्पाइरल की टोटल लेंथ फाइंड करनी है हमें. 13 सेमी सर्कल्स वहां पे बने हैं. सो द फिगर इज गिवन हियर. इफ यू लुक एट दिस फिगर हियर, इट्स लुक लाइक दिस. सो दिस इज लाइक अ स्पाइरल. सो सेमी सर्कल, एक सेंटर यहाँ पे ए है, इसका सेमी सर्कल अपर वाले सेमी सर्कल का जो सेंटर है ए है, ठीक है. और सेंटर कॉन्जिक्यूटिवली चेंज होता रहता है, अल्टरनेटिवली चेंज होता रहता है. और जो नीचे वाला सेमी सर्कल है, इसका जो सेंटर आप देखेंगे, इसका सेंटर बी है, ठीक है. ऊपर वाले सर्कल का फिर से सेमी सर्कल इस तरह से स्पाइरल बनती है, इसका सेंटर फिर से ए है, और नीचे वाले का सेंटर इस वाले का सेंटर, नीचे वाले सर्कल का सेंटर फिर से बी है. तो जो नीचे आ रहे हैं सेमी सर्कल, उनका सेंटर बी है, और जो ऊपर सेमी सर्कल आ रहे हैं, उनका सेंटर ए है, ठीक है. इनके हमें बनाने हैं, स्पाइरल की लेंथ फाइंड करनी है. 13 सेमी सर्कल्स हैं, तो हम लोगों को अगर 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ फाइंड कर लें और उनको ऐड कर दें, तो देन वी विल गेट द टोटल लेंथ. सो यहाँ पे दे रखा लेंथ ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल्स L1, L2, L3, L4 इस तरह से मान लिए, सेंटर ए बी रेस्पेक्टिवली. सो नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड इट. सो पहले लेंथ L1 फाइंड करते हैं. L1 कितना आएगा? सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है? दैट इज द सर्कमफ्रेंस. तो सर्कमफ्रेंस होता है सेमी सर्कल का 2 पाई r होता है सर्कल का, इसका होता है पाई r, ठीक है. तो L1 है, रेडियस R1 आ जाएगी. लेंथ अगर 2 निकालें, L2 फाइंड करें, तो पाई रेडियस सेमी सर्कल L2 की रेडियस आ जाएगी. लेंथ 3 फाइंड करें तो पाई R3 आ जाएगी. इस तरह से कितने सेमी सर्कल्स हैं? 13. तो लेंथ ऑफ 13 सेमी सर्कल इज पाई R13. So R is given in the question here. If you look at the question, so जो रेडियस है विद सेंटर A 0.5, फिर रेडियस है 1, फिर 1.5, फिर 2. तो रेडियस 0.5 इंक्रीज होती जाती है. तो देखो यहाँ पे 0.5 है, फिर नीचे वाले सर्कल की रेडियस है, ये हो गई 1, फिर ऊपर वाले की सर्कल की रेडियस हो गई 1.5, ठीक है, लाइक दिस. सो इट इज पाई. What is radius is given? R1 is given 0.5. So it can be written as 0.5 को पहले अगर मैं लिख लूं और पाई को बाद में, 0.5 पाई, right? Second, radius is 1. So it's 1 pi. थर्ड वन की लेंथ आएगी 2 pi, not 2 pi, it's 1.5. R3 is given 1.5, 1.5 pi, and so on. इस तरह से इसकी भी लेंथ आएगी पाई की फॉर्म में. R13 कितना होगा? व्हाट इज R13? R13 की जो वैल्यू होगी, आप इसको, ये वैल्यूज होगी 6.5 पाई. क्यों? ये कैसे मैंने प्रिडिक्ट किया इसको? देखो, जब यहाँ पे 1 निकाल रहे हैं तो इसका हाफ 0.5 आ रहा है, सेकंड की निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो 2 का हाफ. ये देखो 3 का हाफ 1.5, तो मैंने 13 का हाफ किया 16.6.5. सो हमारे पास ये आ गई है. तो 0.5 ऐड करते जा रहे हैं, 12 तक तो 6 हो जाएगी, 13 वाले में 0.5 ऐड होगा तो ये हो जाएगी. अब देखिए क्या एपी बन रही है ये? इज इट एपी? यस, इट्स एपी. सो व्हाट इज ए इन दिस एपी? ए इज 0.5 पाई. व्हाट इज कॉमन डिफरेंस इन दिस एपी? तो से फर्स्ट टर्म माइनस
सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सो 1 पाई में से 0.5 पाई माइनस कीजिए तो कॉमन डिफरेंस इज 0.5 पाई आएगा, क्योंकि 0.5 ऐड होता जा रहा है, राइट। एंड व्हाट इज n इन दिस केस, n है 13, तो हमें इनका लेंथ का सम फाइंड करना है। अगर इन सबको ऐड कर दें जितनी भी लेंथ है तो हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी इसकी। सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला फॉर Sn इन दिस केस। सो Sn is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. Put all the values in this identity and then we get the answer, right? So let us put the values. n हमारे पास कितना है, n है हमारे पास 13, so 13 by 2, 2a, a is given 0.5 pi plus n is 13 minus 1, 12, and d is given 0.5 pi. So it can be written as 13 by 2. 2 into 0.5 is become 1. 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 5 2 जा 10, तो 1 पाई आएगा यहाँ पे। और 12 मल्टीप्लाइड विथ 0.5, 12 का हाफ 6, तो 6 पाई आएगा। So this is the answer in this case. It can be written as 13 by 2 into 6 pi, 6 plus 1 7 pi, 13 7 is 91 pi by 2. So this is the answer in this case. The length, the sum of length is this. Let me check is the pi value is given in the question or not. Yes, pi is given 22 by 7. तो अगर क्वेश्चन में बोला है उन्होंने टेक pi equal to 22 by 7, then we need to solve it further. Now put the value of pi here. So it's 92 by 7, 91 by 2, 22 by 7. So 2 cancel this 11 times, and 7 1 is 7, 7 3 is 21. So Sn in this case is 13 multiplied with 11, it's become 143 is the answer in this case. So the length, the total length of spiral is, the total length of spiral is 143 centimeter, right? So it is given in the centimeter length. So this is the length. I hope this question is clear to you, how to find out the length in this case. Yes, sir. Now look at this question number 19 on the screen. Dipanshu, could you please read this question written on the screen? 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in a bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top row? Okay. So यहाँ पे logs हैं, ये जो वो होती हैं कंस्ट्रक्शन में जो लगाते हैं, घर बनाते हैं तब बल्ली बल्ली बोलते हैं इसको हिंदी में। तो लेंटर को रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं लोग्स। लकड़ी है, ट्री को जब कट करके छोटे छोटे पीसेस बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लॉग। नाउ इन दिस अगर आप देखेंगे यहाँ पे 200 logs आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर। पहली जो उसमें है 20 logs हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 20 हैं और इसको बीच में रखा जाता है यहाँ पे कि ये स्लिप ना हो, ठीक है। ऊपर वाली जो सेकंड रो है उसमें एक log कम आता है, क्योंकि इनके बीच में यहाँ पे फिक्स किया जाता है, इनको यहाँ पे इस तरह से रखा जाता है क्योंकि वो स्लिप ना हो। और फिर उससे ऊपर वाली जो ये है रो, इसमें एक कम हो जाता है और ऐसे कम होते जा रहे हैं। सो यहाँ पे 20 है फर्स्ट में, देन 19, देन 18, देन 16 एंड सो ऑन, राइट। सो दिस इज एपी। एपी है, रेस्ट एपी है। If you read further the question, 200 logs are given.
सो व्हाट इज एस एन गिवन इन दिस क्वेश्चन? इनका सम जो है 200 है सभी लोग का. व्हाट इज ए इज गिवन 20. व्हाट इज डी इन दिस केस? -1. minus यस, माइनस साइन को लेना ना भूलें, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है. हाउ मेनी रोज आर 200 प्लेस्ड? सो हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले हमें n फाइंड करना है इसमें. दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. हाउ मेनी रोज आर देयर? कितनी रोज वहां पे हैं, ठीक है. और कितनी रोज हैं, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट वाली रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और इस तरह से चलते चलते मान लो nth रो है यहाँ पे, लास्ट वाली रो. तो लास्ट वाली रो में मिनिमम कितना आ सकता है? मिनिमम क्या आ सकता है सबसे ऊपर वाली रो में? लोग, एक लोग आ सकता है, 1. मिनिमम 1 आ सकता है. ऐसे दो हैं ऊपर वाली में, अगर सेकंड लास्ट में दो हैं तो उनके ऊपर बीच में एक ही आ सकता है, ठीक है. इस तरह से ऐसे समझ सकते हैं लोग. ऐसे 2 फिंगर हैं, ये 2 फिंगर हैं, तो इनके बीच में ऊपर वाली रो में एक ही आ सकता है. तो मिनिमम हमें अब यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है. एक तो n, कितनी रोज हैं ये, और एक इस लास्ट वाली रो में an कितना है, ठीक है. और an जो होगा वो 1 से कम नहीं हो सकता है. 1 से कम क्या होगा? रखा ही नहीं है कुछ भी, नेगेटिव में नहीं जा सकता है an, राइट. सो नाउ लेट अस फाइंड दिस थिंग. सो लेट अस ट्राई टू अप्लाई द फॉर्मूला. फॉर्मूला Sn हमें गिवन है यहाँ पे. सो लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला फॉर Sn. Sn formula is n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So let us apply this formula and put the given values in it. फिर देखते हैं कुछ मिलता है क्या हमें यहाँ से. Sn कितना गिवन है? 200. n का नहीं पता है हमें. 2 into a कितना है? 20. n we do not know, so it's n minus 1. And what is d? d is given -1. So let us simplify it. It's 200 is equal to n by 2. It's become 40 minus n plus 1. So take this on that side, it become 400. 40 plus 1 41. n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, it become 41n minus n square. So shift all that side on that side. So it become 41n plus 400 equal to 0. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक splitting the middle term method. So n square minus n plus 400. So we need the two numbers जिनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके 400 आए, और मल्टीप्लाई करके 400 आए, और ऐड करके उसको 41 आए. Product is 400 and the sum of that two number comes out to be 41. So what are that two numbers? So let us find it. 400 के फैक्टर बना लेते हैं. 25 and 16. 25 and 16. Yes, it's right. So how to find it? It's इसके फैक्टर बना लेते हैं. 2 अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो इसके फैक्टर बना के हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस तरह से. 50 2 25. अब देखो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. अब 25 यहाँ पे बचा तो यहाँ पे 25 से डिवाइड किया, तो 25 में से अगर 16 को माइनस करें, 25 में अगर 16 ऐड करें, तो इट कम्स आउट टू बी 41. यस, लाइक दिस. नाउ लेट अस फाइंड इट. x स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16s plus 400 equal to 0. Take n common, n minus 25. Take minus 16 common, n minus 16. 16, 2 and 25 is equal to 0, right? So it's n minus 25 and it's n minus 16. So from here what the values we have obtained? n यहाँ से कितना आ जाएगा? 25. और यहाँ से n कितना आएगा? 16. तो अब हमें n की दो वैल्यूज तो नहीं हो सकती हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, बट दोनों पॉजिटिव आ रही हैं. एक नेगेटिव आती तो हम लोग नेग्लेक्ट कर देते, बट दोनों पॉजिटिव आ रही हैं. सो
कैसे इसमें हम लोग इसको वैल्यू चूज करेंगे? सो फर्स्ट n इक्वल टू 25 ले लेते हैं और an फाइंड करते हैं। an 25th, अगर 25th रो है तो उस रो में नंबर ऑफ लोग्स कितने हैं वो फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ लोग्स होगा an, जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, n माइनस 1 इंटू डी। a इज गिवन इन दिस क्वेश्चन 20, n हमारे पास आया 25 माइनस 1 और d था -1। ठीक है, 20 इट्स बिकम 24 माइनस 24। तो कितने लोग आ रहे हैं सबसे ऊपर वाली रो में? अगर 25 रो लेते हैं -4, इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो लोग हैं वो माइनस में हो ही नहीं सकते, 1 से छोटा हो ही नहीं सकता है वो, इट्स नॉट पॉसिबल। या तो 1 होगा या कुछ होगा ही नहीं, वहां पे ऊपर रखा नहीं होगा उन्होंने। ऐसा हो नहीं सकता कि ऊपर कोई भी रो ना आए, क्योंकि वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, कोई तो नंबर आएगा, मिनिमम 1 आ सकता है। सो वी नेग्लेक्ट दिस n इक्वल टू 25, राइट। n इक्वल टू 16 से an की वैल्यू फाइंड करते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a is given 20 and 16 minus 1 15 into -1, so it's 20 minus 15, 5. yes, so the answer in this case is 5। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आएगा इसको कि हम लोग किसको नेग्लेक्ट करें। तो हम लोग क्या करेंगे, an की वैल्यू फाइंड करके, जो हमारा सेकंड पार्ट है, उससे हमें पता लग जाएगा कि नेग्लेक्ट किसको करना है। सो द आंसर इन दिस केस इज n we need to find is 16 and an is equal to 5। So this is the final answer in this case. I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 20. In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meters apart in the straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, run back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? Okay, so potato race हो रही है। Let me explain this question. Potato race में क्या करती है लड़की, भाग के जाती है। पोटैटो यहाँ पे रखा है 5 मीटर पे, भाग के गई यहाँ से 5 मीटर, ठीक है, भाग के गई 5 मीटर, वापस आई, पोटैटो बकेट में डाल दिया। तो सबसे पहले डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की उसने? 10 meters. 10 मीटर, राइट। नाउ सेकंड केस में क्या किया, यहां से गई वापस से, ये पोटैटो उठाने, सेकंड पोटैटो यहां से गई 5 और 3 डिस्टेंस ये ट्रेवल की, और 5 प्लस 3 वापस आई, तो 8 डिस्टेंस ट्रेवल की और वापस 8 आई, तो सेकंड डिस्टेंस इज 8 प्लस 8 16। तो सेकंड पोटैटो डालने में 16 मीटर ट्रेवल किया, 16 मीटर, इट्स नॉट सेंटीमीटर, 16 मीटर ट्रेवल किया, राइट। एंड थर्ड पोटैटो में आप देखेंगे 15 प्लस 6 प्लस 3 और ऐड हो गया, तो 5 प्लस 3 प्लस 3 11 वहां पे गई, पोटैटो उठाया, वापस आई, बकेट में पोटैटो डाला, 11 प्लस 11 22 सेंटीमीटर, 22 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। और ऐसे पोटैटो उठाती गई, बकेट में डालती गई। कितने पोटैटो थे? 10 पोटैटो थे। तो कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की टोटल, ये काम करने में पोटैटो में ये फाइंड करना है, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने। सो व्हाट इज ए इन दिस क्वेश्चन इज 10, डी इज इक्वल टू 6, एन इज इक्वल टू 10 पोटैटोज हैं, ठीक है। एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड, एस एन हमें फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस कैसे आएगी, 10 प्लस 16 प्लस ये। सो द फॉर्मूला फॉर एस एन इज n by 2, 2a plus n minus 1 into d. So put all the values in this. So what is n in this case is 10 by 2, 2 into 10 plus n is 10 minus 1 9 and d is 6. Now if we calculate it, then that is the answer. So it's 20 plus 54. Sn is equal to 5 into 74.
So the value in this case is 370 meter. So the distance traveled by her is 370 meter in this question. I hope this question is clear to you. And that's all Yes, about sir. this exercise.